अगर ये बात मैं कहूं, आप कहें कि इजराइल हार गया, तो दुनिया कहेगी कि ये तो फिलिस्तीन की मोहब्बत में कह रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर इजराइल के अखबार ही, इजराइल के प्रिंट मीडिया ही लिखने लगे कि हार गया इजराइल। जी हाँ मेरे दोस्तों, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। जो इजरायली मीडिया है अब वो सीधा सीधा लिख रहा है कि इजराइल ये जंग इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हारा है, वरना इतिहास में इजराइल कोई भी जंग नहीं हारा। हम अपने इतिहास में पहली बार देख रहे हैं कि हमास के आगे इजराइल, हमारा देश कमज़ोर पड़ गया है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी जब देश का मीडिया ही पोल खोल रहा हो। बाकी हमास पहले ही कह चुका है कि हम जीत गए हैं। वहीं इजरायली मीडिया का ये भी कहना है, ये भी दावा है कि इजराइल का जो गोल था, जो मकसद था उसका, जो उसने लिस्ट बनाई हुई थी कि ये और ये करना है, वो तमाम मकसद इजराइल के पूरे ना हो सके। उधर जॉर्डन से ताज़ा तरीन तस्वीरें आ रही हैं जिसमें खुशियां मनाई जा रही हैं गाजा के सीज फायर को लेकर। उधर हमास ने एक तरह से इजराइल के तमाम साथियों को धमकी सी दे दी है, लहजा धमकी भरा इस्तेमाल किया है और कहा है कि हम और हमारे लोग कभी नहीं भूलेंगे जिसने इस जेनोसाइड में पार्टिसिपेट किया। उधर गाजा के अंदर जाने के लिए हजारों ट्रक गाजा के बॉर्डर पर लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रक जाने को तैयार तो हैं, लेकिन अभी भी इजराइल ने रास्ता नहीं खोला है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि इजराइल के अंदर इजराइल की मीडिया ऑन एयर स्टूडियो में बैठकर लाइव कह रही है कि हम हार गए हैं, इजराइल ने हथियार डाल दिया है, हमारे यहूदी जो सिटीजन हैं उनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ चुकी है और इतिहास में हम ये जंग हार गए हैं। सुनिए। אנחנו נכנעים כי זו כניעה, תרצו לקרוא לזה ככה או לא, זו הפסקת המלחמה, זה לא מיטוט חמאס, וזה אפילו לא החזרת כל החטופים והחטופות, זה שוב לא זה ולא זה. והגרוע מכל הוא המחיר ששילמנו, נרצחי טבח 7 באוקטובר, חללינו הגיבורים מהמלחמה הנוכחית, וביטחון כל אזרחי מדינת ישראל שמוטל על הכף. זה התשלום בעבור הנחמה החלקית. मेरे दोस्तों, सीज फायर होने का मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने आतंकी कृत्य किया और गाजा के नरसंहार को सपोर्ट किया उनको दुनिया भुला देगी। इतिहास में काले अक्षरों से उन्हें लिखा जाएगा। डील होने के बाद भी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन को उनकी स्पीच के दौरान उन्हें टोक कर जलील किया गया, उनको जेनोसाइडर कहा गया, जेनोसाइड करने वाला, नरसंहार करने वाला कहा गया। देखिए, 300 reporters in Gaza were on the receiving end of your bombs. Why did you keep the bombs flowing when we had a deal in May? We all knew we had a deal. Everyone in this room knows we had a deal, Tony, and you kept the bombs flowing. Why did you sacrifice the rules-based order on the mantle of your commitment to Zionism? Why did you allow my friends to be massacred? Why did you allow my friends' homes in Gaza to be destroyed when we had a deal in May? You helped destroy our religion, Judaism, by associating it with fascism. You waved the white flag before Netanyahu. We'll have the time to take questions at the end. You waved the white flag before Israeli fascism. We'll have the time to take questions Your at the end. Your father-in-law was an Israel lobbyist. Your grandfather was an Israel lobbyist. Are you compromised by Israel? Why did you allow the Holocaust of our time to happen? How does it feel to have your legacy be genocide? How does it feel to have your legacy be genocide? You too, Matt. You smirk through the whole thing every day. You smirk through a genocide. Thank you. I carry in my pocket the names of those who have been arbitrarily detained and unfairly held hostage, unjustly held hostage, and bringing them home, returning them to their families, returning them to their loved ones. Finally, get your hands off me. 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 Answer a damn question. Do you know about the Hannibal Directive? Do you know about Israel's nuclear weapons? Everybody from the ICJ. I was sitting here quietly, and now I'm being manhandled by 2 or 3 people.
You pontificate about a free press. You pontificate about a free press. You are hurting me. You are hurting me. You are hurting me. I'm asking questions after being told by Matt Miller that he will not answer my questions until I ask him Please, sir, questions. respect the process. We'll have an opportunity to take questions. Wasn't the point of the May 31st statement to block the ICJ orders? You blocked the ICJ orders. You Please, sir, respect the process. Thank you. Oh, respect the process. Respect the process while everybody from Amnesty International. उधर इजराइल की मिनिस्ट्री ने आयरन डोम बनाने वाली इजराइल की ही कंपनी से और भी बड़े एग्रीमेंट किए हैं, जिसके मुताबिक वो आयरन डोम की और बैटरीज और खुद आयरन डोम और खरीदेंगे। वो बात बिल्कुल सच्ची साबित हो गई ना फिर, जो मैं कह रहा था कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ है, लेकिन हवा क्या बनाई जा रही है कि ईरान कमजोर है। अजी कद्दू कमजोर है, जिसके नाम से ही तुम मुंह देते हो उसे कमजोर कैसे कह सकते हो? जब चिड़िया खेत चुग गई तब आए लाठी लेके मुन्ना। अब सऊदी अरब ने कहा है अब कि इजराइल, सीरिया, फिलिस्तीन, गाजा और तमाम अरब की जमीन से पीछे निकल जाए, पीछे हट जाए। उधर अमरीकी एनएसए ने कहा है कि अगर गाजा पर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे। फिर आप समझ सकते हैं दोबारा से माहौल बनाया जा रहा है, इजराइल को ही इशारा दिया जा रहा है कि देखो आप कर सकते। लेकिन मेन बात यह है कि ये बाइडेन सरकार के एनएसए ने मंत्री ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप का जो मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो आएगी, फिलहाल उसने दोबारा से हमले करने की ऐसी बात नहीं की है। लेकिन कुत्ते की दुम पर आप भरोसा कर लो सीधी हो जाए तो ये तो बेवकूफ़ी आपकी और हमारी कहलाएगी। तो इसलिए हमें ट्रंप से भी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गाजा के लोग यकीन कर चुके हैं कि अब इजराइल हमला नहीं करेगा। अब उन्हें अपने उजड़े हुए आशियानों को बसाना है। सबसे पहले सब मिलकर मलबों को हटा रहे हैं और सड़क साफ कर रहे हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة। वहीं इजराइल के वॉर क्राइम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और वीडियो देख लीजिए जिसमें ये देखिए, अल्लाह के घर मस्जिद को गाजा के अंदर बम लगाकर चुन चुन कर मस्जिदों को इजराइल ने इसी तरह से उड़ाया है। हालात वैसे गाजा और फिलिस्तीन के इतने ख़राब हैं कि इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। गाजा के लोग कब्रिस्तान में टेंट लगाकर रहने पर मजबूर हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने गाजा को $120 मिलियन मदद देने का ऐलान किया है। उधर गजा में इसी के साथ 46,800 फिलिस्तीनियों की शहादत दर्ज की गई है। इजराइल ने जो किया है उसको दुनिया कभी नहीं भूलेगी। बड़ी खबर एक और बता दूं कि इजराइल ने ह्यूमन राइट ऑफिसर को इजराइल के अंदर बमबारी करके कत्ल किया है। इजराइल ने इतिहास में सबसे ज़्यादा कहीं बम गिराया है तो वो गाजा, 85,000 टन एक्सप्लोसिव एक छोटे से गाजा पर इजराइल ने गिराया है, जिसके मलबे को और बारूद को साफ करने में ही 10 साल लग जाएंगे। इजराइल ने गाजा में जो किया है सो किया है, लेकिन फिलिस्तीन के जेरूशलम के इलाके में इजराइल फिलिस्तीनियों के मकानों को भी लगातार तोड़ रहा है। सबूत देखिए। الله يعوضك عوض خير يا ابو معاذ بلال يحيى. الله يعوضك عوض خير يا غالي. عوض الله. सिर्फ इतना ही नहीं, जेरूशलम और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाकों से फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी इजराइल कर रहा है। आइए अब लेबनान ले चलूं तो लेबनान की भी ताजा तस्वीर कुछ देर पहले की। घरों को बम लगाकर मैक्सिमम लेवल पर जितने वो मकान उजाड़ सकता है उजाड़ रहा है। इजराइल लेबनान में पूरा सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और दुनिया हाथ में चूड़ी पहन के
छन छन कर रही है। अभी भी आपका भरम तोड़ दूं, इजराइल अभी लेबनान के अंदर गांव में बिल्कुल अंदर के इलाकों में मौजूद है। देखिए, الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهنا। उधर लेबनान के राष्ट्रपति को कतर ने अपने मुल्क दावत दी है। हाल ही बमबारी में, कुछ देर पहले की बमबारी में, इजराइल ने इस फिलिस्तीनी डॉक्टर को इनके पूरे परिवार के साथ बमबारी करके शहीद कर दिया। इजराइल के सबसे बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने दोबारा लिखा है कि इजराइल फेस कर सकता है तुर्की के साथ एक बड़ी जंग। उधर सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार फिर से टीवी चैनल पर दुनिया से कहा है कि मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी pressure बनाए İsrail पर कि वो Suriye की सरजमीन से बाहर निकल जाए. Bölgelere saldırı yaptı. Tabii ki bu bölgeler Suriye halkınındır aslında, rejimin değil. Dolayısıyla biz mutlaka vatanımızı savunmalıyız, Suriye halkını korumalıyız. İsrail'de Hezbollah ve İranlı milislerin orada olduğunu öne sürüyorlardı ve saldırılar düzenledi. Şimdi aslında Suriye'nin Suriye'ye saygı duymalı, Suriye'nin egemenliğine saygı. ve दोस्तों, गाजा स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप तमाम अपडेट्स देख रहे हैं और आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं और मेरी टीम लगातार आपको जहां भी हूं मैं अपडेट दे रहा हूं। हैदराबाद में मौजूद हूं और लगातार कोशिश है कि आपसे कोई खबर मिस ना हो। मैं और मेरी टीम 24/7 एक्टिव है। अपने दूसरे काम भी, अपनी मीटिंग्स भी और लोगों से मिलना भी करते हुए आपके सामने ऑन टाइम रिपोर्ट हम दे रहे हैं। मैं आज अपनी टीम को स्पेशल थैंक्स बोलूँगा जो देर रात सुबह शाम अवेलेबल है, और आप लोगों का सबसे बड़ा शुक्रिया कि मेरे इस बैकग्राउंड को देखते हुए, इस ख़राब से बैकग्राउंड को देखते हुए, ज़्यादा VFX न देखते हुए, सिंपल वीडियो देखते हुए भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं। शायद यही मैंने कमाया है और यही मेरी कमाई है। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी कमाई यानी आपकी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।